are a power pack performer, firecracker on stage. मेरा जो कंपटीशन है ना वो और कोई नहीं सिर्फ मैं हूँ और मेरा पिछला शो। But tell me about your travel. एक दो बार आपको झटका लगेगा, एक दो बार झटका उनको लगेगा। But I want to know about the lesson. Some guy had asked for some extortion money from him for like. So, on today's episode, we have someone very close to my heart. You'll keep listening to me saying this over and over again that he is indeed the warmest, kindest, nicest person I have met in the recent times. Though I don't know him for years, I know him since just 1 year, but it feels like I know him from decades. Having said that, I want to tell you all something. He has never given interviews in the past with, and he doesn't do too many media interactions. So this is an exclusive interview, chit chat with my special friend. In the show, you're going to see he has poured his heart out, not just about himself, but also a lot many people who are connected to him and very close to him. So I would request all of y'all to watch this episode till the very end. Today on this show, I have somebody who's very special. Before I get to having y'all meet him, I want y'all to know how I met him. मेरे को एक कॉल आया, आपको एक गाना कोरियोग्राफ करना है, गाने का नाम है तड़का. It is by Gurdeep Mehendee, Daler Mehendee's son. And that's about it. We're shooting in next 2 days. I said okay. So मेरे माइंड में ऑलरेडी एक परसेप्शन आ गया था. Gurdeep Mehendee, Daler Mehendee's son, Mika Singh's, he's the chacha. So I was like, wow. So I already had a perception that he is going to be like this loud guy who's going to walk in and he's going to be like, oh, chak de fatte, and we're going to like. So I was like, ठीक है, fine. So the choreography is also going to be something like that. And then I get a call from Gurdeep ji, and he calls me and he's like, hello. मैंने बोला hello. So I felt मैं ज़्यादा loud थी उनसे. तो उन्होंने कहा मैं रिहर्सल हॉल आ सकता हूँ. मैंने बोला आप रिहर्सल के लिए आओगे? Because usually artists don't give too many rehearsals because they are so busy. And this man is always busy because he's always traveling. We'll come to that later. And then I meet him. And he enters the hall. And he walks in. This sweet looking guy. So classy. And the best part about men in general that I really look, when I meet somebody I look forward to is the way they talk. Oh my God, his tone was never high. He was so warm and kind and loving and I'm like, are you Gurdeep Mehendee? He's like, yeah, Gurdeep Mehendee. आप मुझे step बता दीजिए. This was his tone. I'm like, कौन है ये? Is he single? First thing clicked in my head, is he single? So here we have for you, Mr. Gurdeep Mehendee with us. So Thank you so much for. इतनी तारीफ मैंने कभी सुनी नहीं ना, तो अभी वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, पच नहीं रही. बट ये जितनी भी सारे बातें की हैं ना, ये तो मुझे आज पता चली है कि ये ऐसा सोच रहे थे. बट अमूमन ये होता ही है कि ये तो मतलब मैं कभी एयरपोर्ट पे होता हूँ तो दलेर मेहंदी सन वो तो बाद है, सरदार जी हैं पगड़ी बनी तो दूर से कोई इशारा करता पाजी. तो इसका मतलब क्या है? अभी मैं क्या करूं एयरपोर्ट पे, क्या करूं? इसका मतलब मैं क्या करूं? अब मैं वहीं पे शुरू हो जाऊं. और फिर जब शोज़ पे उनको पता चलता है ना कि गुरदीप मेहंदी एंड दिस, तो मतलब अब वो प्रिपेयर्ड है कि अब ऐसे है. अब क्या है, मैं बैक स्टेज मैं बड़ा शांत रहता हूँ कि हाँ मुझे ये करना है और फिर मैं वो जो लाउड मूवमेंट्स होती हैं वो मैं स्टेज पे करता हूँ. पर कोई बैक स्टेज आता है ना, वो तभी अपनी उस एनर्जी के साथ आता है, पाजी आज तो ये कर देना है, आग लगा देनी है, ये वो. मैं क्या, हाँ जी अब मैं पेट्रोल लेके वहीं पे आग लगा ही दूंगा. तो वो बहुत कॉमन है पंजाबियों के साथ, सरदार जी के साथ, कि ये बस आएंगे और सीधा ही मतलब तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे. Tell me something. How you're so like the types, I don't that know. every girl would want to slyly have an eye कि ये बंदा कौन है, इनसे मिलना है मुझे. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. जैसे कि ये मेरा ड्रीम भी है कि मैं एक टाइम कभी अपने परफॉर्मेंस के थ्रू इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं, नॉट एज बीइंग अ सरदार
बीइंग इंडियन लाइक यू नो, और वो उसमें ऐसा होता है कि प्रॉपर क्लासिकल संगीत भी है, बहुत सारे म्यूज़िक की कहानियाँ हैं, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जितना पहले सुने और जितना शांत रह के उस जगह को परखे, यू नो, व्हेन यू ऑब्जर्व, आई थिंक तब ज़्यादा बेटर आप परफॉर्म या डिलीवर कर पाते हो। और हर बार मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम गोइंग टू अ प्लेस, आई एम मीटिंग न्यू पीपल, एंड लाइक यू नो आई वाज मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं पहले देख लूँ सोच के समझ के, ताकि क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा, जो भी मेरा नेक्स्ट कहने का करने का तरीका होगा, वो जज करेगा कि मैं किस तरीके का बंदा हूँ। राइट, एब्सोल्युटली। तो और अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वो 3-2-1 कैमरा शुरू ऑन स्टेज, तो वो 2 घंटे आप अपना काम फिर ऐसा काम दिखाओ कि वो फिर वो बीच की स्टोरी नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ वो 440 वाला ही होना चाहिए। हाँ, उसके बाद जब मैं स्टेज से उतर जाता हूँ, फिर मेरा उनसे कोई लेना देना है नहीं, फिर मैं अपने वापस जोन में चले जाता हूँ जहाँ पे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परफॉर्म कर चुका होता हूँ। 2 घंटे मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ कि जैसे ये पहला और आखिरी है और ये बेस्ट है, और यहाँ से 10 शो तो निकलने ही चाहिए। अब उसके लिए बंदा बेहोश भी हो जाए ना, तो वो ऐसा लगता है वो क्या, वो रणभूमि है ना, वहाँ पे बंदा बेहोश भी हो जाए, मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे नहीं, आप कहीं और बेहोश हो रहे हो, या आप कहीं और अपने शोशेबाजी और इतने वाह वाह कर रहे हो, और उसका कोई मायने भी नहीं है, तो मतलब मैं उस कैटेगरी में गिरता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार पहले सुनो वो बंदा कहना क्या चाह रहा है, क्या किस दिशा में है, और उसके बाद फिर। But it's such a contrast that comes with the songs that you sing Yeah. and the personality that you have. Like for example, when I choreographed also, तो मैंने ना काफ़ी simple steps रखे थे, ये सोच के कि मतलब आप तो कितना ही डांस कर लोगे। मतलब वही ना, इन्होंने ये सोचा था कि तड़का और आते ही अंग अंग फड़का, ऐसे ही होगा, ऐसे सोचा था ना। सोचा था, and then you showed me your videos, you remember? Yeah. आपने स्टेप देखा, आपने बोला नहीं आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे। जी बिल्कुल, मैंने नहीं देखा, मैंने इतना आपको स्टॉक नहीं किया अभी तक, अभी करने वाली हूँ, now that I've met you. So आपने मुझे आपका वीडियो दिखाया, जी। and you were a power pack performer on stage. You are a power pack performer, firecracker on stage. Okay, I think talking about stage, when you're on stage, there is a different high that people get. Yeah. You know, I want to talk about that, because all those people out there who want to be performers, who are artists, and they are on stage, and all those people who are in the audience, जिनको पता नहीं होता है, जो स्टेज पे खड़े हैं even for 5 minutes, वो feeling जो होती है वो क्या होती है? I want to talk about that. For an artist, you know, मेरी जो पहली मोहब्बत, मेरा पहला प्यार, वो ये है कि माइक्रोफोन एंड स्टेज। एंड क्योंकि मैं पापा जी को और चाचा जी को देख के ही बड़ा हुआ था, और उन्होंने तो ऐसा नाम बनाया है और ऐसा काम भी किया है। नॉर्मली क्या है कि आई हैव सीन सिंगर्स बड़े लेवल पे, बहुत बड़ा नाम, बट मैंने पापा जी जितना सुरीला आर्टिस्ट स्टेज पे बहुत कम है। क्योंकि आप जब लाइव गाते हो ना, तब आपकी एग्जैक्ट कहानी पता चलती है, क्योंकि स्टूडियो में तो देर आर टू मैनी यू नो थिंग्स वेयर यू कैन चेंज एंड ऑडियो ट्यून एंड ये सब है, पर जब स्टेज पे होता है ना आदमी, तब उसका एकदम पूरा चिट्ठा नजर आ जाता है। So you sing live on stage? We sing live, yeah. 1.5 hour का set? हाँ, Are 2 hours. Are you telling me 2 hours आप गाते हो और डांस भी करते हो? पूरा लाइव, कुछ उसमें कोई ये जो आजकल ट्रैक जो और ये सब है। हो रहा है स्टेज पे, मुझे उन आर्टिस्ट जो है ना, जो बहुत सक्सेसफुल हैं और अच्छे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप इस बात से प्लीज़ स्ट्रेस ना लें कि कौन माइनस गा रहा है, कोई +1 गा रहा है, कोई ट्रैक पे गा रहा है, कोई कैसे। आई थिंक, और जो मुझे लगता है, जो मैंने फोकस किया है, फोकस ऑन यू। आपकी, मेरा जो कंपटीशन है ना, वो और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ और मेरा पिछला शो। बस Nice. जो मेरा पिछला शो है वही मेरा कंपटीशन है, क्योंकि ऐसे में तो मैं बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री को छोड़ देता और मैं पैकअप करके चले जाता, क्योंकि कंपटीशन तो इतना बड़ा है। और कभी ऐसा क्या होता है कि जब आप बढ़ रहे हैं, यू ग्रोइंग एंड यू सी योर फ्रेंड्स
सेम उम्र के हैं, उन्होंने ज़्यादा नाम कमा लिया है, तो आप और मायूस हो जाते हैं, है ना। तो मुझे यही है कहना कि जो ट्रैक पे भी कर रहे हैं, गॉड ब्लेस देम, है ना। और जो कैसे भी अपना बंदा रोजी रोटी कर रहा है और आपको एंटरटेन कर रहा है ना, बस आपको एंटरटेन कर रहा है ना, तो बस हो गया। इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस में जाके आप निकालो कि जी ये ऐसा गाता है, ये गाता ही नहीं है, ये बेकार है। मैं कहता हूँ कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ है वो उसको उससे क्या लड़ेंगे हम, नहीं। Absolutely. तो आई जस्ट हैव टू से दिस थिंग टू ऑल द सॉर्टेड सिंगर्स हु सिंग लाइव। आप इस परेशानी में मत ही पड़ो कि जी वो बंदा अच्छा गाता है, बुरा गाता है, या वो डिज़र्व नहीं करता। आप सिर्फ अपना कंपटीशन, अपना टारगेट अपने आप को ही रखो कि आपने पिछले शो में कैसे किया था Well said. और आप आगे क्या कर सकते हो। बाकी इसकी कोई नेवर एंडिंग कहानी है। But if I have to, that's so beautifully put together. Yeah. But if I have to ask you, तो आप जब लाइव परफॉर्म करते हो, जी। you know you're singing live, and then there are artists who don't sing live and Yeah. they mock it. Yeah. I mean, does it make a difference for the audience? Of course it does, because I'm an artist myself. It does make a difference, right? 100%, because if I am performing back to back, and वो हो ही इसलिए इस वजह से रहा है because when you're performing live you can improvise there and then. Nice. अब एक सेट है, एक सेट लिस्ट बनी हुई है, एक प्रॉपर सेट चल रहा है, यू कांट स्टॉप योर शो एंड देन यू नो डू वट एवर यू वांट टू, बिकॉज वो फिर वो लिंक है ना, वो मिस हो जाएगा आपसे, Right. वो लीड मिस हो जाएगी। बट आप लाइव कर रहे हो तो आप राजा हो अपने स्टेज के, जहाँ आपको मन करे वहीं पे शो रोक दो। एंड आमूमन ऐसा ही होता है कि जो सेट लिस्ट मैं बना के चलता हूँ वो अब कोई ऐसा कपल आ गया है वो 60+ और मेरे सेट लिस्ट में चल गाना है लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, है ना, और वो 60+ वाला कपल है। अगर मैं ए मेरी जोर जबी तुझे मालूम, तो वो स्कोरिंग पॉइंट है। लड़की ब्यूटीफुल चुल कर गई वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हो सकता है वो काम भी कर जाए, बट ये वाली चीज़ फॉर श्योर काम करेगी एक, यू नो। और आपका सेट लिस्ट में बहुत खूबसूरत गाना है कि तेरे मेरे सपने, अब आगे बच्चे नाच रहे हैं जो कम से कम 10-11 साल के हैं, तो उनको वही चाहिए डीजे वाले बाबू मेरा गाना। तो यही एक आई थिंक आपके पास पावर है जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। यू कैन स्टॉप, यू कैन इम्प्रोवाइज, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। एंड वो जो सेट लिस्ट है उनके पास ये ऑप्शन नहीं होती है। Very well put together. Let's keep the liveness of artists. Yeah. एक आर्टिस्ट जब लाइव कोई चीज़ करता है और जो आप यूट्यूब पे देखते हो या गाना सुन लेते हो डिफरेंट होता है, तो उस चीज़ को आप उस तरीके से इंजॉय करने का हक दीजिए ऑडियंस को। जी 100%, यू नो 100%। टेल मी समथिंग। तो ये जो एनर्जी और ये जो पावर आता है आपको स्टेज पे, जी ये आप बैक स्टेज जाके कुछ माल नहीं, ये अच्छा सवाल है। आई वांट टू नो दिस। So I told you I've seen my father, you know, performing, and I've seen my uncle Mika Tacha performing. और मैंने अभी तक पापा जी को कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। What are you saying? 1 second. पापा जी दारू ही नहीं पीते, इसकी वजह से हमारा काम खराब हुआ पड़ा है। तो उन्होंने कभी भी आज तक अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं किया, ठीक है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में अब तक नहीं देखा और उन्होंने कभी किया भी नहीं, और उन्होंने ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं कंज्यूम किया। एंड क्योंकि उनकी जो स्ट्रगल और जर्नी थी वो तो बहुत ही गरीब से शुरू किया था, जहाँ पे मतलब व्हेन ही टेल मी हिज स्टोरी कि उनको सिर्फ इतना था कि कहीं से कोई भी परफॉर्मेंस मिल जाए, तो उनका पहला शो 150 रुपये का था और 150 रुपये में उनको पूरे बैंड को, पूरे घर को बांट के खाना पीना चलाना था। बट वो कहते थे कि वो तब भी ऐसे रोते नहीं थे, मुझे ये हो गया कहते। मतलब मेरी मम्मी ने बताया था कि दिवाली का त्यौहार था और पापा जी के दोस्त हैं गोगा अंकल जो यूएस में रहते हैं, तो दिवाली के त्यौहार में गोगा अंकल ने बोला कि जी मैं तेरे लिए मिठाई लेके आ रहा हूँ। तो उस टाइम पे जितने की मिठाई थी ना देसी घी की, पापा जी ने बोला तो एक काम कर, वो खाना बहुत अच्छा खाते हैं पापा, बोलते मिठाई कैंसिल कर,
तू ना एक अच्छा सा ना मेरे लिए मटन करी लेके आ, मैं वो तेरा दिवाली गिफ्ट समझ लूँगा और मैं उसको एंजॉय कर लूँगा, पैसे वो दोनों के सेम है। तो ही वॉज नेवर लाइक इन दैट रोते धोते वाले जोन में। ही वॉज लाइक कि जितने पैसे मिल रहे हैं, बस काम करने का जुनून था उनको कि काम मिल जाए। तो ऐसे में, ऐसी हालात में आदमी कौन सा पदार्थ खाएगा? तो वो सब तो उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। Of course. एंड देन उन्होंने कभी ड्रिंक नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुजी को वादा किया था कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। Wow. तो फिर मैंने देखा, एंड एवरी वन हाउ दलेर मेहंदी परफॉर्म्स ऑन स्टेज, Oh मतलब my ही इज़ God, लाइक दैट he's a वन। legend. वो मेरे दिमाग में थे कि जब इतना सक्सेसफुल आदमी, इतना बड़ा आदमी, और कभी कोई चीज़ को नहीं छुआ, उन्होंने हमेशा ये बताया कि मत करना, है ना, मत करना। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जब बिना अल्कोहल और बिना ये सब चीज़ें ये हो पॉसिबल हैं, तो आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट को ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो ये तो कंफर्म Wow. मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब मैं भी परफॉर्म करता हूँ, और मैं जितना परफॉर्म करता हूँ, बहुत कम लोग उतना परफॉर्म करते हैं। तो ये बहाना है किसी भी चीज़ का सहारा लेने का। और जो ख़तरनाक लोग हैं जो अभी भी ज़बरदस्त हैं, वो तो आई थिंक चाय और कॉफ़ी पे भी उसको एतराज़ कर देते हैं कि भाई इसकी भी ऐसी कोई लत नहीं है कि ये नहीं पियेंगे तो नहीं होगा। तो अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस, वो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है. तो मैं पक्का पक्का एग्जाम्पल हूँ कि कोई सामान खाने की, कोई भी चीज़ की आपको लत से आपका काम चलेगा, ऐसा खाना, सूंघना, पहनना, कुछ नहीं। लगाना. और सब मेरी अपनी पूरी होती. टीम, हैव टीम ऑफ 11 बॉयज़, मेरी पूरी टीम, कोई भी बंदा कुछ भी नहीं खाता, ना नॉट इवन अल्कोहल। ये तो चलो Wow. काम से पहले तो I सख्त remember हिदायत you है। telling me that your team doesn't even eat जब तक you are not out of your stage. The other day you all were talking about this. यस यस यस। एक बार किसी ने ऐसे कर दिया था तो वो क्या हुआ था, आपने बता दिया मुझे. ये वो बंदा गया था हमारे साथ, और वो ही वाज नॉट परफॉर्मिंग बट ही वाज पार्ट ऑफ माय टीम, राइट। Yes. और उसको लग गई होगी, भूख लगी होगी या टेम्पटिंग लगा होगा कुछ का। हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा ही बंदा है। मैं बोला कंफर्म ये वो है क्या? और वो ना उसने पानी पूरी का ऐसे लिया ही था, तो मैंने आंख दिखाई तो कहता भूख लग रही है। मैं बोला अच्छा खा ले भाई खा ले। मैं बोला पर हम लोग यहाँ पे कुछ काम करने आए हैं। But it's so much fun, right? To like travel with a team. By the way, coming to traveling, you travel so much. But tell me about your travel. फॉर ट्रैवल मेरा यही सजेशन है, आप लाइट खाना खाएं और डिसिप्लिन अपनी बॉडी में अपने आप से करें। जब अपने आप से आपका डिसिप्लिन बन जाता है, फिर जो पूरी दुनिया में जितने भी आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो ये समझ जाते हैं कि ये बंदा ऐसे वर्क करता है और ये इस तरीके से चलेगा। एक दो बार आपको झटका लगेगा, एक दो बार झटका उनको लगेगा, पर वो अगर झटका आपका फ़ायदा कर रहा है तो भाई गिव देम दैट शॉक। I really feel people life में shocks होना जरूरी है. 100%। Shocks भी होना जरूरी है, shock भी होना जरूरी है. तो आई थिंक दो ही चीज़ें हैं, डिसिप्लिन और वो पता है क्या, आपको पता होता है आपकी बॉडी में क्या कमज़ोरी है। आप जब दूसरे बोलते हैं ना तब आप बहाने बनाते हो कि लेट क्यों आया, तो ट्रैफिक नहीं तो फलाना नहीं तो कुछ ये नहीं, है कुछ नहीं वो है। आएगा. मतलब कुछ लोग मेरे पास मेरे हैं इसमें, उनको वो बॉम्बे में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और उनको पता है, उनको मेरे से ज़्यादा अच्छा पता है कि बॉम्बे का ट्रैफिक क्या है। हाँ. तो जब वो बोलते हैं ना सर ट्रैफिक, फिर मैं क्या बोलता हूँ कि मैं ताली मारता हूँ कि क्या बात है। मतलब फिर मैं लेट आया बॉम्बे और मैं तेरे को बीट कर चुका हूँ टाइमिंग में, क्योंकि मुझे पता है ये बॉम्बे का ट्रैफिक कैसा है। Yeah, yeah. और किसी भी शहर का कोई भी ट्रैफिक है वो तो रहेगा, पर वो क्या है कि ये आपकी हैबिट बन चुकी है, लेट आना, एक्सक्यूजेस देना, ये आपकी हैबिट बन चुकी है। और मेरे केस में मुझे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर एक फ़्लाइट मिस कर दूंगा, ऐसा नहीं कि फ़्लाइट के पैसे चले जाएंगे। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं लाइक ट्रैवलिंग टू औरंगाबाद और ट्रैवलिंग टू मे बी फ्रॉम गोवा टू सूरत, वो एक ही फ़्लाइट जाती है। Absolutely. बस उसके बाद ऑप्शन नहीं है। और जिस इंसान ने शाम को आपका इंतज़ार कर रहा है, उसने पूरी शादी का जो दामोदार है, इट्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन योर शोल्डर्स। एंड हाउ कैन यू बी सो लेज़ी और ईजी और यू डोंट केयर अबाउट इट। मतलब वो जब आप वो सब बातें सोचते हो ना कि उसका
2.5-3 करोड़ रुपए लग चुका है, और Yeah, जस्ट बिकॉज my God. आपने अपना आलस दिखाया और फ्लाइट मिस हो गई, आपका ट्रैवल घटिया प्लान्ड था, वट Was not very हाँ, good, yeah. तो आप सोचो कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो उसके लिए। और फिर मैं ये मानता हूँ कि घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपका कर्मा जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लेट डालता है जब आपकी कोई बारी होती है ना, जब आपकी हाँ, important काम होगी हाँ, और वो और सामने वाला choreographer आपको late आया है। सामने वाला हाँ, एक सामने वाला ऐसा करेगा। So that's the two key point. Nice. Yeah. Tell me something about your childhood and Delhi. तो मैं पैदा हुआ बॉम्बे, और मैंने जो असली जो बड़े होते हैं स्कूलिंग और ये सब वो मैंने दिल्ली में किया, और फिर मैं काम के सिलसिले में वापस बॉम्बे आ गया, और फिर अब मैं बॉम्बे में ही हूँ। So tell me about Delhi. I want to know how your, your schooling and your college and what all happened. How was your growing up stage? बहुत ही रिजर्व्ड, और कैसे कह सकते हैं, बिकॉज पापा जी उस टाइम सुपरस्टार, Exactly. वो तो अभी भी हैं, बट He उस is. टाइम पे ही वॉज द मैन लाइक ऑफ द कंट्री, कि ना कि दलेर मेहंदी। और तब उनको हर चीज़ का बहुत प्रेशर था, और उनको तब एक थ्रेट भी आई, और वो थ्रेट बहुत What is this threat that you're talking about? some guy had asked for some extortion money from him for like in 1998 97. Are you serious? yes it's there, आप गूगल I'm sure, करेंगे तो I'm sure. मिलेगा। तो उनको इस बात से बहुत स्ट्रेस और घबराहट और टेंशन हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा बचपन जो है वो फिर सिक्योरिटी गार्ड्स और इन सब के साथ बहुत गुजरा, एंड वी वर अलाउड होम स्कूल बैक टू होम। ज़्यादा खेलने वेलने को भी बहुत कम मिलता था, बिकॉज वो ट्रस्ट नहीं बैठता था विद फ्रेंड्स एंड। Did it affect you in a way कि okay, because there are a lot of kids like that who have a life like this, and then there are kids who see this, उनको तो as a normal child I'll be thinking क्या मस्त लाइफ है, बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहे हैं, ये है वो है, नहीं, दलेर सर के बेटे हैं। मैं तो ऐसे सोचती, मैं तो बहुत ऐसे हमें मुझे याद है, हमें बर्थडे पार्टीज में जाना अलाउड ही नहीं था, बर्थडे पार्टीज में जाना अलाउड नहीं था। अच्छा, कोई दोस्त हमारे घर पे भी नहीं आ सकता, घर पे भी नहीं आ सकता। और बहुत कम चांसेस हुए हैं कि गिन के मुझे उंगलियों पे याद है कि कभी मेरे दोस्त आए होंगे और मम्मी की हाथ की बिरयानी खाई है, पर ऐसा बहुत कम हुआ है। तो वो जो एक दौर था, वो एक टाइम था, वो मेरे लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल बच्चों की जो कहानी होती है कि भाई कहीं भी चले गए, कहीं भी कुछ भी खा लिया, किसी भी बर्थडे पार्टी में जाना है, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं होता ना। मतलब आपने भी बचपन में अपनी मम्मी से कभी परमिशन ली होगी कि उसका बर्थडे है, मैं जाऊँ कि नहीं। So I want to talk about this. This is something very interesting क्योंकि ना हम ये nepotism and star kids ये सब के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, and we don't realize, we actually don't talk about this that Gurdeep is talking to us about. Yeah. See, people growing and फिर वो not doing good is bad, ठीक है, but being a celebrity son or a kid is worse, literally worse, because जो आदमी जिसको खोने को कुछ है ही नहीं, उसकी इमेज या कुछ, वो एक्सपेरिमेंट करेगा और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाएगा। पर जिसके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक आई एम प्रीटी श्योर माई फादर मस्ट हैव गॉन थ्रू वेरी टफ टाइम, एंड उनके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और हमें था कि हम कुछ भी करें वो इनडायरेक्टली वो पापा जी के पास चले जाएगा, एंड जिसके लिए ऐसा होगा कि गुरदीप इज़ नॉट बैड, दलेर मेहंदी इज़ बैड फॉर दिस। और ऐसा हुआ भी है, मतलब अभी 11th-12th आ गए थे हम, तब भी बाहर नहीं निकल रहे, और वो तभी 10th के एग्ज़ाम्स और 12th के एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल वो प्री बोर्ड्स के लिए जाना पड़ता था। तो उसमें से जो थोड़ा बहुत बोर्ड का ख़त्म होने के बाद वो टाइम था ना घर जाने का, हाँ. तो हम अपने ड्राइवर को पटाते थे, और हम अपने जितने भी गार्ड्स को उनको पटाते थे कि यार 1-2 घंटे के लिए यहाँ पे ना कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, या तो प्लीज़ पापा का फ़ोन आए तो बोल देना कि जी एग्ज़ाम ख़त्म करके ऐसा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। और उसमें भी
कोई भी रैंडम बंदा दिखता था ना, तो वो वीडियो बना के पापा को भेजता था, और वो ऐसे बना के भेजता था कि जी आपका बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है हमारे यहाँ पे, और हमें ऐसा लगता था कि अरे भाई ये क्यों किया, और तब पापा जी यूज टू गेट वेरी एंग्री कि बता के नहीं गए, बोला नहीं, और सिर्फ 2 घंटे मांग रहे थे हम, तो वो इतना मतलब हमें So it's hard to be a star kid. वेरी 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 हार्ड, वेरी हार्ड। हमें मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मुझे 2 घंटे अपने दोस्तों के साथ बैठना है, वो भी दिन में, उसके लिए भी मुझे परमिशन छोड़ो, कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ता था कि जिससे पापा को पता ना चले कि ऐसे हम करके आए हैं। और नाइट स्टे, नाइट आउट, ये सब तो था ही नहीं, सिलेबस में नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इट वाज So all the fancy things that we talk about and we see and then we blame Yeah. very conveniently. Guys, you all should hear this, you know. This नहीं, takes my heart. it's worse, मतलब you know, आप कोई भी ऐसा, अब वो तो अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आप कोई ऐसा गाना बनाना चाहते हो जो यू नो यू वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पर आप नहीं बना पाते हो, क्योंकि आपके पहले 2-3 फिगर्स आ जाती हैं आपके दिमाग में कि यार पहले ये गाना सुन के बंदा पापा को क्या बोलेगा, ऑडियंस पापा को क्या बोलेगी, You या serious? चाचा को क्या बोलेगी कि ये क्या गाना कर दिया, या ये कैसा शूट कर दिया, या ये कैसा मतलब इट इज़ वेरी Abhi bhi you have to sometimes put all of the equations together. आई हैव टू। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, आप जो करना Wow. चाहते हो आप वो करो। आई एम प्रीटी श्योर अभी नीचे कमेंट आएंगे, बोलेंगे कि आप इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप जो करना Yeah, चाहते हो exactly. करो। Because you know, वो क्योंकि हमें नहीं समझ में आता. अब ये चीज़ है कि यू नो यू रिप्रेजेंट योर Well कल्चर एंड यू रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली। कोई भी बंदा डेलिबरेटली या इंटेंशनली गलत तो करना चाहेगा नहीं, बट हाँ आप एक्सपेरिमेंट भी तभी करते हो कि आपको रिस्क फैक्टर पता है कि इस एक्सपेरिमेंट का इतना रिस्क आएगा। लाइक सपोजिंगली आई हैव टू डू अ सॉन्ग where you know it has got not nudity but something Yeah. which is you know that you want to create that hotness, Yeah, है ना? yeah. तो वो आप उतने तक का ही लेवल का रिस्क लोगे कि यार ये मेरा एंड होगा अगर इसका ये आंसर आएगा, तो आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो एक सर्टन रिस्क के साथ करते हो। So you're always, so technically you're always living with a risk factor involved in terms of your decisions. एवरी डे एवरी टाइम। मतलब मुझे थोड़े महीनों पहले एक कमेंट आया था कि मैंने कुछ तो था, मैंने परफॉर्म किया था या कुछ है, तो नीचे कमेंट आया कि वही सब तो पापा जी का है, सब बढ़िया है, ऐसा करके। That's तो ridiculous, guys. मैंने रिप्लाई भी किया उस बंदे को, मैंने ऐसा छोड़ा नहीं। मैंने कहा कि जी अगर ऐसी बात है तो जितना पैसा पापा जी के पास पड़ा है उसमें तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इतना। और दूसरी बात, रही बात पापा की, वो तो अलग है, मैं सरदार आदमी हूँ। हाँ. मेरा लंगर, मेरा जो खाना है वो गुरु नानक देव ने लगाया हुआ है 24/7 किसी भी गुरुद्वारे में जाके। क्या कह रहे हो आप? हाँ, आप किसी भी गुरुद्वारे में कहीं भी, लास वेगस में भी चले जाओगे, वहाँ पे भी 3 गुरुद्वारा हैं। गुरुद्वारा साहब में 24/7 आपको खाने को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। 24/7। तो मैं उनका बेटा हूँ, है ना, गुरु महाराज का बेटा हूँ, तो मुझे खाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने उसको रिप्लाई दिया कि अगर ऐसी बात है तो मेरे को काम करने की दिक्कत क्या है, मैं तो जो मर्जी चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसा रह सकता हूँ और रहता भी हूँ। पर मैं अगर उस स्टेज पे काम कर रहा हूँ ना, इसका मतलब यही है कि मैं कुछ अपना खुद का करना चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ। वरना पैसे और खाना ये तो गुरु महाराज ने इतना दिया हुआ है कि मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। पर वही चीज़ है कि आप कुछ अच्छा करो तो ये तो पापा जी हैं, अगर आप बुरा करो ये सब ऐसे ही होते हैं या आप है, तो क्रेडिट आपको कभी मिलने नहीं वाला इस चीज़ का कि आप अच्छा करोगे तो क्रेडिट उनको जाएगा, और अगर आप कुछ भी बुरा कर रहे हो। That's so true, huh? Yeah. That's so true because you know, and I'll talk about myself. I can't talk about others, but ऐसा हुआ है in life that I've sat with friends and we're discussing some star kid and we're like, उस घर में पैदा हुए तो वो नहीं आएगा तो कैसे होगा? And if they are not that good, तो that also we are discussing because the father is like that, no, because the mother is like that. Like that, But yeah. that's so true.
It's an eye opener for a lot of people who just talk for no Yeah. reason. कुछ बात करनी ही करते हैं. And the environment what star kids have to face. घर में कोई ऐसा पीसफुल ज़बरदस्त वातावरण नहीं चल रहा होता, बिकॉज आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे आप शक के दायरे में आते ही रहते हो, है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ ये वो, तो वो घर का भी इन्वायरमेंट इतना वाओ टाइप का नहीं रहता. तो देर आर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स जो विच इज़ नॉट दैट in favor or which is not normal for a kid to लाइफ जीने का तरीका वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ही अजीब सा. Very interesting facts, insights you're giving us right now, because I never saw it that way, and I didn't ever speak to you so much about all this because हम उस zone में नहीं गए. But yeah, now I'm going to be careful about how I talk about any star kid, for that matter, whether good, whether bad, whether whatever. I've never spoken to you about all this because मुझे, I never थोड़ा सा wanted to लगता है. get into all that. But जी. I want to know about the lesser. अरे he is first I would say he's very positive and he's religiously very much connected with Guru Granth Sahib. And कभी भी मैंने ना उनके मुंह से ना नहीं सुनता हूँ, मतलब मुझे पता होता है कि सिचुएशन ना वाली है, बट आधी चीज़ें अब बिकॉज आई एम एट दिस पोडियम, आपके थ्रू ये बात मैं सबको कहना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी में आधी चीज़ें सिर्फ हाँ बोलने से सॉर्ट हो जाती हैं और आधी चीज़ बिगड़ती ही सिर्फ ना बोलने से. आप एक बार आप ना बोल देते हो ना, वो आधा मूड वहीं ख़त्म होता है. मैं कहता हूँ किसी का मान रखने के लिए, दिल रखने के लिए आप सिर्फ पहला यस बोलो ना, उसमें एक अलग सी पॉजिटिव वाइब आ Very जाती well है. said. एंड दिस इज़ वॉट ही इज़. वो कभी भी किसी भी चीज़ को ऐसा मतलब आप उनको बोलोगे ना कोई ऐसी बात कि जो सिर पैर भी नहीं है, कि मतलब मैं बोलूँ कि पापा जी एक फ़्लाइट पकड़ेंगे चांद पे जाना है, तो वो पहला ना नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ओके ठीक है. तो और कमाल की बात क्या है कि जो चीज़ के लिए वो हाँ बोलते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो चीज़ हो जाती है उनके साथ, वो कर ही देते हैं. ही इज़ ब्लेस्ड इन दैट वे, क्योंकि वो जब when he was in US and he and his brother 86 में they used to ride taxi in US, तभी वो US वाली लाइफ 80s में बहुत बड़ी और सुनहरी थी, क्योंकि जो भी बंदा उस टाइम US जाता था तो Of course. it turned out to be like a millionaire अब के टाइम में. Right. वो सब छोड़ के he came to India and then he उनको लगा कि वो अपने आप को देखते हैं as a celebrity, as a superstar, as a pop artist, और वो उन्होंने ऐसा किया अभी. और फिर उसके बाद जो उनकी जर्नी बन के अब तक है, उनका जो ऑरा है ना, वो ऑरा इतना बड़ा ऑरा है कि मतलब लिटरली आप महसूस कर पाओगे 100 मीटर्स की भी दूरी से ना कि कोई बंदा आया है. और आप पापा जी को कन्विंस कर लो कि जी फलाना 5-7 स्टार होटल है एंड वहाँ पे जी दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू बी ट्रीटेड. तो ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट बिकॉज खाना अच्छा नहीं मिल रहा है वो उसको ठुकरा दें और किसी ऐसे दोस्त के घर पे चले जाएं जहाँ पे वो चटाई बिछा के सिर्फ एक अच्छा सा दाल, पीली दाल, ओहो। चावल और चटनी और एक आलू की So सब्ज़ी उनकी फेवरेट है. sweet. वो ऐसा, और उन्होंने बहुत बार किया हुआ है. बड़ी जगह पे उन्होंने अपने इनविटेशंस ठुकराए हुए हैं और ऐसी जगह पे गए हैं जैसे जहाँ पे मैं बोलता हूँ अरे यार इधर आप बोलते हैं कि इधर जाने की क्या ज़रूरत थी, आप कहीं और चले जाते, वहाँ से आया था. तो ही इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, एकदम राजा. तो जब वो इंडस्ट्री में आए तब वो एकदम राजा बन के ही आए थे ना, क्योंकि वो दिल्ली में थे, एल्बम हिट हो गया, तो उन्होंने कभी किसी से काम मांगा ही नहीं बॉम्बे में आके, तो वो बने और चैम्पियन. Sorry, so during his time, how was he making music? Like, how was his thought process to make the kind of albums he's made? तो 95 में बोलो तारा एल्बम आई थी जो सबसे बड़ी हिट थी, पर 95, 93 और 94 में वो इतने बिजी पहले से ही थे शोज़ में, जैसे मैं आज शोज़ कर रहा हूँ वो मुझसे डबल कर रहे क्या थे. कह रहे हो आप? हाँ जी, मैंने ये आप खुद, ये क्या था मेरे पास एक पॉइंटर, 25 shows in 26 days. What is this? तो वो
93 94 में ही सुपरस्टार, मतलब दिल्ली में वो इतने बिजी थे कि उनको एल्बम बनाने का कोई शौक ऐसा था नहीं, ना ही उन्होंने पैसे पूसे डाले। वो उनको एक ऑफर आई और उन्होंने गाना डब किया एंड देन बैक टू हिज लाइव शोज वाली ज़िंदगी। बट दैट सॉन्ग टर्न्ड आउट टू बी अ मैसिव हिट ऑफ द ईयर कि फिर उनको वो एक बड़ा सा पुश मिला, लिफ्ट मिला। बट उनकी जो रहन सहन है, खाना पीना है, वो अभी भी वैसा ही है जो स्टारडम से पहले था। Are you single? I'm- Why? I'm not- Am I I'm- not? Am I not? I'm sure a lot of people want to know. After this interview, तो मतलब ऐसे दर comment. नहीं Oh Riya, shit, yeah. That's not fair. I'm married to beautiful सरदारनी, Oh, so sweet. आधी अंग्रेज है वो, फिनिश, जेसिका। And so sweet. so she was born and brought up in Finland, but सरदारनी। And I'm pretty sure आप जेसिका सर्च करोगे तो खूबसूरत मोहतरमा ही आपको दिखेंगी। Aw, how sweet. So Finland, you keep traveling to Finland, right? Yeah, I have a house in Finland as well, and I keep traveling to Finland. And जैसा कि अब आपको मेरा नेचर समझ आ गया होगा कि ओहो बल्ले बल्ले तोड़ फोड़, वैसा नहीं। जब मुझे एक अच्छा टाइम मिलता है कि मैं क्या कहते हैं, रियाज कर सकूं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ्री बैठा हूँ, क्योंकि आप भी और मैं भी, हम लोग आर्टिस्ट हैं। हम 365 डेज काम करने के लिए रेडी हैं और हम बने ही इसलिए हैं। Correct. तो मेरी ज़िंदगी में मेरे बर्थडे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने बर्थडे पे ज़्यादा काम कर लेता हूँ अगर मुझे पैसा वैसा मिलेगा। तो मेरी ज़िंदगी में कोई छुट्टी नहीं है। पर जब मुझे रियाज़ करना है और मुझे लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मैं फ़िनलैंड चले जाता हूँ। I could buy a apartment in Finland, so I was like, why not? Then I have a very small cute apartment, and Wow. वहाँ की जो vibe है, बड़े प्यारे लोग हैं। I don't know how much does it work. मतलब there is a proper training, right? That every artist, of course, there's a talent that you're born with. Now, how do you make it more powerful for yourself? I want to talk about Riyaz and your Guruji and something deeper in this aspect. मैं रोज़ रियाज़ करता हूँ। रोज आप करते हो? हाँ, पर बहुत छोटा करता हूँ रियाज़। और रियाज़ का मतलब ये नहीं है कि आप 8 घंटे तक एक स्वर का या एक स्पेशल पर्टिकुलर मूव का रियाज़ कर रहे हो और उसमें से कुछ निकल ही नहीं रहा। रियाज़ का मतलब ये है कि जी मैं अपनी ज़िंदगी ये मेरा पैशन भी है, मेरी हॉबी भी है, अब ये प्रोफेशनल भी बन चुका है। मैं इसको हर दिन देखता हूँ, तो मैं 20 मिनट 30 मिनट कुछ ना कुछ मैं इससे जुड़ा ही होता हूँ, तो मैं वो करता हूँ। और दूसरी बात है कि ये एक ऐसा चैप्टर है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। Absolutely. ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो आप ये सब कहानियों में जाना बंद कर दीजिए कि मैं मायूस हो चुका हूँ कि मुझे काम नहीं मिल रहा। तो मतलब कि ये कहानी जुड़ी हुई है आपके पैसों से। तो पैसे कमाने तो बहुत सारे ज़रिए हैं, पर अगर आप कहते हो कि अभी मैं इस टैलेंट से बिलोंग करता हूँ या आई हैव दिस टैलेंट एंड आई रिप्रेजेंट, है ना, तो उसमें तो नेवर एंडिंग चैप्टर है। मैं कहता हूँ 24 घंटे भी कर लोगे ना तो भी इसका कोई एंड नहीं निकलेगा। और इनफैक्ट इसमें तो मज़ा ही आता रहेगा। जब मैं फिनलैंड बैठा हूँ और मैं अलग अलग राग के लिए रियाज़ करता हूँ, तो मैं अपने गुरुजी को फ़ोन करता हूँ। मेरे लाइफ में 3-4 गुरु रहे हैं। Oh wow. इनफैक्ट मीका चाचा, मीका सिंह, the kind of image he's have in industry, for me very different। मतलब वो बहुत इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि मेरी बातों को कोई मानेगा ही नहीं। मतलब आज तक मुझे उन्होंने कोई ऐसी बात के लिए बढ़ावा नहीं दिया, ऐसी कोई चीज़ के बारे में नहीं बताया कि जिससे आप कोई शॉर्टकट या कोई डुप्लीकेट या कोई ऐसी कहानी करो। सो ही इज़ लाइक वेरी पंक्चुअल ऑन टाइम। तो मैंने उनसे भी जो सीखा है, अपने मंजीत गुरुजी हैं, रवि पवार जी हैं, तो मैं वहाँ से फ़ोन करता हूँ कि जी मुझे बताओ ना कि एक कहानी कैसी है। और तब मुझे पता चलता है कि अरे बाप रे, इतना साल सीखने के बाद, इतनी उम्र के आने के बाद ये चैप्टर तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। अब इसको शुरू करूँगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। But also because you have the inclination कि मुझे सीखना है और जी जी
अब क्या हो गया है, लोगों का जो परसेप्शन है अबाउट लर्निंग अ सर्टेन थिंग, सीख लिया, अब मैं पैसे कमाने लग गया हूँ, लग गई हूँ, सो आई एम ओके नाउ. yeah. And then the growth somewhere stops. I want to talk about Mikasa. Ah, He is such a, okay, so I feel he is a very well played person. जी. He plays his cards so well. He's जी. आज के ज़माने का भी, he'll talk to a youngster also the way he needs to talk. Yeah. And he'll be, you know, shant and calm like the way, the side that you're talking about. Yeah. Tell me about him. मैं मीका सिंह बड़ा वो इतने दानी आदमी है ना. मैंने सुना अभी उन्होंने आइलैंड दे दिया. वो डोनेशन वो जैसी जैसी करते हैं वो बंदा सोच भी नहीं सकता. और मुझे भी लगता है कि उनका जो काम चल रहा है ना, वट एवर ही इज़, वट एवर ही इज़ डूइंग, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स पे चल रहा है. और कोई मुझे दूसरी मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता कि ऐसा कैसा चल सकता है. क्योंकि वो एक एनजीओ चलाते हैं. और कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से वो जो भी उनके सर्कल में है ना, वो ऐसी दान भावना के साथ उसके साथ जुड़े रहते हैं कि आदमी, मैं कहता हूँ, जो एक ब्लेसिंग देता है ना वो काउंट हो जाती है और उनका काम चल जाता है. तो मीका चाचा के बारे में, मीका सिंह जैसे वो दिखते हैं, जैसे वो हैं, वो बहुत ही डिफरेंट आदमी है. और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा वो कोई पाठ पूजा भी करते हैं जो हमें बताते नहीं हैं. और वो 2-2 घंटे वो गायब हो जाते हैं. तो ये सीक्रेट कोई जान लेना, हमें भी बता लो. We'll be next Mika Singh. Yes. Gurdeep, you just got a new house. Yeah. Tell me your experience in getting this new place. You've seen my house and it's beautiful. Yeah. And और मैं हर सुबह कॉफ़ी अपने सोफे पे बैठ के और वो व्यू एंजॉय करता हूँ. और मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार, मैं तो ये सोच नहीं सकता था दैट किसी दिन मैं अपने नाम पे कुछ चीज़ लूँगा कि नहीं लूँगा. और भगवान ने मुझे इतना बड़ा घर दे दिया है, तो मुझे वही विश्वास होता है, नहीं होता कि ये अपना ही घर है कि हम कहीं बैठे हुए हैं. नहीं, एंड आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू थिंग्स विच यू हैव. एंड स्पेशली जो कोर है इस चीज़ को करने के लिए, वो है माई मदर. माई मदर, या शी इज़ द वन हु स्टार्ट्स, यू नो, जो इनिशियल स्टार्ट होता है ना, वो वही देती हैं. और उसके बाद फिर मुझे वो हिम्मत मिलती है. एंड देन माई कंपनी रंगत, यू नो, जिनके साथ मुझे काम करके 7 साल हो चुके हैं. एंड गुजराती लोग, बॉम्बे बेस्ड. एंड थर्ड इज़ विजय ठक्कर, who's my, you know, very very good friend. मैं उनको क्या बोलूँ. and he's always there to support. otherwise मुझे लगता है ये 3 लोगों के बिना मैं ऐसा कुछ घर या ऐसी कोई चीज़ ले ही ना पाऊँ. So I think I have to thank my mom, Rangat, and Vijay bhai, love you. So sweet. So you know, 2 कैरेक्टर आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, और होना चाहिए भी नहीं, और होगा भी नहीं. मतलब वो हैं आपके मॉम एंड डैड, मम्मी ते पापा. ये 2 लोग, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं. और ये 2 आपके लाइफ में ऐसे हैं कि अगर कोई एक नहीं है साथ में, तो जो दूसरा है वो ऐसा है कि बच्चा जो मर्ज़ी करे, जैसा मर्ज़ी जो भी करे, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है. पर बच्चे ये बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि हमारे पेरेंट्स जैसे भी हैं, हम भी तो एक्सेप्ट करें ना उनको. कि देखो, आपने जो भी गलतियाँ की या जो भी प्लस माइनस किए, वो ही हैं. लाइक इन दैट केस, इफ़ योर मॉम, यू नो, शी वॉज देयर, इवन इफ, लाइक, यू नो, आपने कुछ बुरा किया है तो भी वो खड़ी हैं. ऐसे केस में कल को कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपको सही ना लगे, मम्मी ने ऐसा कुछ गलत कर दिया है, तो आर यू गोइंग टू गिव दैट सेम थिंग, सेम comfort level which she's been giving to you throughout? Love them the way they are, accept them the way they are, because when you were like a small baby kid, and they accepted you the way you were. Yeah, that's true, with all our faults that Yes. we made in our journey. Yes.
Tell me ज़्यादा something. इमोशनल हो जाएगा. It's a sensitive topic and it's difficult to explain to a lot of people. Sometimes you just want to, because also you're not so mature to deal with, Things. because who are they for you? They are God, right? Yeah. उनके तो नीचे, उनके ऊपर उनके नीचे हमारे लिए कोई नहीं कोई नहीं होता. होता. जब वो कोई गलती भी नहीं कह सकते हो, वो जब weird हो जाते हैं, so you just don't know, to run away from this. Then I know kids and people who have taken wrong decisions because of that. Yeah. So it's very important what he just said, and we should keep that in mind. The moment we change our perception and start looking at all these issues the way he said, कि वो भी, Then you sorted. yeah, जब आपको पता है कि भाई मैंने मुझे कुछ खोने के लिए मुझे वो सब चीज़ों में है ही नहीं, तो आपको फिर गुस्सा और वो सब चीज़ें आ ही नहीं सकती, आनी ही नहीं चाहिए. true. So now that you're staying alone, I want to know, do you cook? Oh yeah. You cook? Okay, so what's the best thing that you cook? अब अभी तो मेरी मम्मी आ गई, सब लोग आ गए, अब घर पे फिर सब आ भी गए. होता है ना कि he makes the best chai. I'm very good with non-veg. I am very good with non-veg और veg मैं बनाना चाहता हूँ, पर मुझसे बहुत बुरा बनता है, पता नहीं क्यों. जैसे मैंने इतने बड़े बड़े खलीफा देखे हैं खाना बनाने वाले, पर उनसे चाय नहीं सही बनती. नहीं होती. सही कहा आपने. और जो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ जी हमसे नहीं बनती, वो मुझे ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में चैम्पियन ही बनना है. आप हो चैम्पियन, पर वो जो एक चाय है ना, और एक पर्टिकुलर पीली दाल और नॉन वेज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ख़तरनाक है. ये इसमें आप तीनों में प्रो हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. और मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, पर क्योंकि मेरे हाथ से चाय भी बहुत ही घटिया बनती है, इतनी ज़्यादा घटिया बनती है कि मैं शिफ्ट हो चुका हूँ चाय से कॉफ़ी के लिए. और कॉफ़ी मैं कैसी भी बनाऊँ ना, मतलब कैसी भी हालातों में बनाऊँ, कॉफ़ी अच्छी ही बनती है मुझसे. So पता नहीं कैसे. tell me a dish Yeah. that you cook the best, and I want you to tell our viewers the recipe. Okay. I think मटन तरी वाला. Are you religious? Are you like spiritually connected? Do you believe in a particular entity? Yeah, but like first of all, I have that respect for every religion. जो भी जितने भी हैं, कोई नया रिलीजन भी आया है तो वो मुझे पता चल जाए कि ये है, तो मेरे लिए बहुत इज़्ज़त है. और मैं रिलीजियस भी हूँ. एंड बस वो जो एक फ़ाइन छोटी सी लाइन है, पतली सी, जो आपको डराए उससे आप थोड़ा दूर चले जाओ, और जिसमें आपको खुशी हो दिल से और आपको मन करे फॉलो करने के लिए, उसमें आप घुस जाओ, चले जाओ. क्योंकि ये बहुत ही ना ख़तरनाक काम है कि कुछ लोग डर की वजह से रिलीजियस दे फॉल इनटू दैट रिलीजन, और मे बी दे फॉल मोर फॉर गॉड. सो डोंट गो इन दैट जोन. डर से नहीं, खुद से अगर, और मैं वैसे ही फॉलो करता हूँ. सो या आई And you do seva and all of that? या सेवा, जैसे मैंने बोला था ना, तन मन धन, ये 3 सेवा है, उसमें से आप तीनों सेवा आप करो तो वो पूरी कबूल होती है. एंड आज अगर हमारे पास अच्छा खासा धन है तो धन की सेवा करो, बढ़िया है. क्योंकि मैं बैक टू बैक शोज़ कर रहा हूँ, या मैं इधर हूँ या उधर हूँ, तो मैं अपनी तन की सेवा, मतलब कि मैं जाके परोसूँ, वो नहीं कर पाता. तो आप कुछ भिजवा दीजिए. Nice. और पैसे नहीं तो कुछ राशन भिजवा दीजिए. और जैसे कि मैंने बोला कि गुरुद्वारा साहब में किसी भी बंदे को अलाउड है, कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है. वट एवर यू आर, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वट एवर, आप आओ, सबसे पहले भोजन करो, लंगर करो, और खाना पेट भरो, उसके बाद आप दर्शन करो, जो आपको अच्छा लगे. तो वही Interesting. कहानी है. I want you to tell me about any business or any kind of project or anything that you want to promote today at this show. With Up to my you. interest, in my interest. So I want you to tell me if there is anything besides That- your profession that you have. जो currently we are working on, and soon we are going to open a Jampad. So Jampad, for people those who don't know, Jampad is like, it's not a proper recording studio. It is a place where
artist singer rehearse with their musicians, ठीक है. So बड़ी बड़ी rehearsals for concerts. So we are going to open a jam pad Wow. very soon. Date fix नहीं है, पर and because मैं हमेशा उस school of thought से आता हूँ कि जो काम नहीं आता वो मत ही करो, छेड़ो ही मत. एंड मुझे सिर्फ यही का काम आता है. और जब लॉकडाउन आया भी था तो वो आया था मेरे हिसाब से, वो मेरे ऑफ सीज़न में आया था लॉकडाउन. तो वो 5 महीने तो मुझे वैसे भी घर पे बैठना होता था. मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं इसमें कुछ कलाकारी कर दूँ. वो तो लोगों को एकदम से उनके जॉब्स पे स्टॉप लग गया, तो किसी ने कोई दिशा पकड़ ली, किसी ने कोई दिशा पकड़ ली. मैंने कोई ऐसी खासी दिशा पकड़ी नहीं. और ये जैम पैड का भी जो कहानी है, ये समवेयर इट इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक. एंड आई थिंक मी एंड माई कंपनी रंगत, we will do good in this business because it is connected with musicians and singers, and this is what we do. So the jam pad is going to be in Bombay or any Yeah, other yes, in yes, Mumbai? yes, yes. And is it going to be like a place where people come and jam? Yes. And Yeah, and anyone can. and it's like there's going to be food and like it's going to be like a restaurant bar or No, just music. Just music. Yeah. Okay, nice. And क्योंकि म्यूजिशियन कॉम है, चाय और कॉफ़ी के बिना चलता नहीं है, तो चाय और कॉफ़ी मिलेगी आपको. बढ़िया. एंड हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिटनेस थोड़ा रखता हूँ, प्रोटीन बार भी मिलेगा. Oh, wow. Jam pad with a protein bar and chai coffee concept. Yes, yes. Nice. So there'll be new people who are getting into the music industry. Yeah. And you know, they also want ways and zariyas ki hum to will they be also a part? They can come in and be a part. Yes, And how does everyone, it work? everyone, people, those who are not into music, Jam Pad is a place. आप feel करो, enjoy करो, and you know, I think we'll be creating an environment, a very lively, positive environment which you have. On the set, Thank you. where even if you don't want to create something, खुद ब खुद कुछ ना कुछ creative निकल ही आएगा. Very nice. Yeah. What is your favorite kind of music? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. प्लीज मत पूछिएगा. मी बीइंग अ म्यूजिशियन, आई कांट, इट्स नॉट दैट आई कांट आंसर. यू नेवर नो व्हाट गुड एंड यू नो, आपको उस टाइम पे कुछ अच्छा लग जाए. यू नो, R&B, क्या कहते हैं, यू नो, हिप हॉप, क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल. तो आई थिंक माई आंसर with this will be a very diplomatic answer. So better. You never know. Yeah. As artists go through phases. Yeah. There are times when somebody asks me, what's your favorite dance style? And I'm like, you know, I started with Kathak and I still love Kathak, but I also want to do Latin ballroom because that gives me a lot of, posture and so poise. And then I also like to do Bollywood sometimes because I want to do Thumka. Yes. So it's just that, yeah. it can never be. Okay. So your first album. Yeah. With Bohemia. Oh yes. Yeah. I want to talk about that. Bohemia पाजी, पहले तो अगर बोहेमिया पाजी सुन रहे हैं तो पाजी, थैंक यू सो मच, आई लव यू. वो ऐसा था कि मुझे ऐसा करना था कि वेयर इट शुड बी माई प्रोडक्ट, है ना. इट शुड नॉट बी कि किसी रेफरेंस के थ्रू. और आई डोंट, इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू डू इट विद माई फादर और माई अंकल, बट मैं क्योंकि उनके साथ करता तो वो कहानी वहीं आ जाती कि भाई उनके हैं तो वो तो होना ही था. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं बोहेमिया पाजी के पास गया था एंड मैंने इसी अप्रोच के साथ गया था कि आपको अगर गाना अच्छा लगेगा तो ही आप हाँ बोलना, नॉट बिकॉज, और वो ऐसे हैं भी नहीं. तो उन्होंने जब बोला, जब मैंने गाना गाया, मैं फ़ैन हो गया नहीं कमलिए तेरी सहेली दा, बोले क्या? मैंने कहा जी मैं फ़ैन हो गया आपकी फ्रेंड का, ये गाना है. तो वो इतना हंसे इस बात पे, कह रहे यार ये थॉट बड़ा ज़बरदस्त है. और ये थॉट था इक्का, यू नो, फेमस रैपर इक्का, ही गेव मी दिस थॉट. एंड दोनों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा, बोहेमिया पाजी एंड इक्का पाजी. और that was my first project with Bohemia. And it did really well. Yeah, it was good. It was good. It was very much talked about. Yeah. Also, I know something about you. What? Kya? Are you going to ever plan to release a music album with Dilesh sir? 100%. Oh my God! Guys that are listening it here in this show. Right now,
जैसे होता है ना वो एक प्रॉपर पक्की स्क्रिप्ट नहीं मिल रही, वैसा मुझे एक प्रॉपर पक्का थॉट नहीं मिल रहा कि जहाँ पे आई सी मी एंड माई फादर इन वन फ्रेम फॉर दैट वन प्रॉपर सॉन्ग. क्योंकि सिर्फ गाना निकालना है और रिलीज़ करना वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, वो तो कल भी कर सकते हैं, पर वो वजह और वो जो चीज़ है कि लगे कि हाँ ये बड़ा सही जा रहा है. क्योंकि एक जगह पे फादर सन है, एक जगह पे इट्स लेजेंड एंड अ न्यू कमर. So you have to do justice to both the situations, you know. तो I just don't want to take his because father son वाली कहानी है, ठीक है जब तक चल रहा है. But if I am going to be in that one frame ever, होगा कभी ना कभी तो होगा. 100%. It has to be very meaningful and it has to be very unique and something which is my father, you know, he should not be questioned कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हो और करते हो और ये आपने क्या कर दिया. Correct. हाँ. Okay, so quickly, I'm going to go through a segment of ours which is called Being Honest with Ankita. ओह वाओ, ये कब हुआ, ये तो डिस्कस ही नहीं किया था. वाह क्या सच बात है. बोल रहे हैं, हमने वो लाई मीटर डाला है, अच्छा. चेयर पे ही है वहाँ पर. So it starts with one thing that you have done earlier and right now you are trying to change it. Trying to change it. The way I used to think about life and music, and now it has a different meaning, and it's I'm trying to, you know, work on it. Really? Yeah. Is it growing every day? Yes. It's growing, of Yeah, course. it is. What do you feel about fame? Fame, a power which should be used in a very positive way, because anyone who's got fame, the impact of that personality or that character can put millions people in a positive zone or can put them in a very wrong negative zone. Very well said. Very well said. Most awkward situation ever? Me being with bunch of people, those who are talking about stock market and business. मुझे पता नहीं होता उससे, तो कभी कभार मैं चले भी जाता हूँ तो फिर मैं ग्लास ढूंढता हूँ और एक कोना ढूंढता हूँ और निकल जाता हूँ. So you are very, all these maths and numbers make you go mad or what? नहीं. Like it does to me. हाँ. वो कोई number वंबर बोल दे तो समझ नहीं आता. I always have that interest of learning new things, but that at the same time I want to be very sure of what I'm talking and what kind of situation I am into, and when you don't know about that thing, I feel very awkward कि अब ये क्या, मैं कहाँ आ गया हूँ, किस जगह पे आ गया हूँ. What are your views on politics? Politics, positive. Like my favorite politician right now is Raghav Chadda. Oh. Yeah, I recently performed at his engagement. Oh, and yes, he's I getting, saw. Yeah, he's getting married to Parineeti Chopra, and not just because I was performing, you know, because he's a very humble and a sorted guy. मतलब उनकी सारी लैंग्वेज पे कमांड इतना ज़बरदस्त है. इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, एंड हमारी एज भी बहुत नज़दीक ही है, मतलब वो मुझसे शायद 1-2 साल बड़े हैं. एंड वो जो मुझे रिस्पेक्ट नज़र आई ना, क्योंकि ही हैड दिस ऑप्शन टू टू गेट एनी famous big celebrity singer to perform for his engagement. And he chose me because of my talent, because उन्होंने कहीं देखा था मुझे और उनको लगा कि नहीं यही बंदा होना चाहिए. तो वो मुझे ना, जो आमूमन पॉलिटिशियंस के साथ वो सच्चाई नज़र नहीं आती है, वो मुझे उनसे नज़र आती है. और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि he being in that zone, he being in politics, he in realistic world with realistic talk,
he can get a very positive, bright change in India. Very happy to hear this. Yeah. What's your take on social media? सोशल मीडिया, जैसे मैंने बोला था कि सिंगर्स के लिए पीपल दोज आर परफॉर्मिंग ऑन ट्रैक्स एंड पीपल परफॉर्मिंग लाइव, सेम सोशल मीडिया के लिए मैंने देखा है अब जो इतना अच्छा नहीं कर पाते वो उसको बुरा कहना शुरू कर देते हैं. Yeah, nice. So tell me, the most expensive thing that you own. माय हाउस, Aww. जो अभी लिया है, that's the one thing. Okay, and I know that you also sing in Gujarati. तो मैं क्योंकि पंजाब में रहा नहीं, दिल्ली में रहा, तो ज़बान थोड़ी साफ़ थी और पापा जी किसी भी लैंग्वेज में बात करते थे तो गज़लें भी गाते थे, तो हमारी ज़बान साफ़ थी. तो यहाँ पे जब मैं आया रंगत के पास, रंगत गुजराती लोग हैं और मेरे क्लाइंट्स फिर गुजराती और मारवाड़ी बनते गए. फिर मैं थोड़ा भी गाता था गुजराती तो वो इतना बड़ा हिट होके आता था कि मतलब इस बंदे ने गा दिया, बिकॉज मी बीइंग अ सरदार, है ना. और मैंने फिर डाकला सीखा. डाकला बहुत ही ऐसा फॉर्म है जो गुजरातियों को पता होगा कि वो माता जी से कनेक्टेड है और उसका वो जो गाना वो बड़ा आपको इधर मतलब बहुत शुद्ध और बड़ा रिलीजियस कंटेंट है. मैंने उसको याद किया एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट कि ये मुझे लाइन है याद करके पेश करनी है और मैं गाता हूँ. तो मैं आपको सुनाऊँ क्या? हाँ, प्लीज. हे डमर वाग्या ने माने वेणा वाग्या, पावा ना डोंगरे वेणा वाग्या. हे वेणा वाग्या ने माने वेणा वाग्या, पावा ना डोंगरे वेणा वाग्या. ठीक है, अभी इसके मुझे प्रॉपर मतलब पता नहीं है, पर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एक वेडिंग पे. गुजराती लोग, जैन लोग और बड़ा सारा स्टार में भरे हुए हैं. राइट साइड कॉर्नर पे ना एक आदमी ना स्टार्टेड शिवरिंग मतलब मुझे लगा कि कुछ सीरियस तो है. स्टार्टेड शिवरिंग मतलब फिर जो हमने सुना हुआ था कि जी माता आ जाती है. अब मुझे पता था कि अमूमन माता तो लड़कियों में आती है, आदमी में क्या. और एक होता है कि वो बंदा गिर गया, बेहोश हो गया. ही स्टार्टेड एक्टिंग, नॉट एक्टिंग आई वुड से, कि वो प्रवेश कर गई, वो माता प्रवेश कर गई. तो जब उसने ऐसे किया, मैं अपना गाना तो क्या ही गाना था, मैंने बुलाया चिंटू भाई को. चिंटू भाई वो गुजराती हैं, मैंने बोला अरे हो गया, और मैंने गाना बंद कर दिया. और वो आए और उन्होंने समझाया मुझे और उन्होंने बताया कि इनको माता आ गई है. और फिर मैंने वो गाना नहीं गाया, बंद किया. और मुझे नहीं पता था कि वो इतना सीरियस इम्पैक्ट पड़ सकता है. पर जैसे मैं कहता हूँ कि आप म्यूजिशियन हो, आप जो करते हो वो दिल से करते हो. तो मेरा जो सुर लग रहा होगा या जो मैं फीलिंग से गा रहा था वो मैं ऐसे गा रहा था. क्योंकि जब मैं गुजराती गाना शुरू करता हूँ तो पहले वो मजाक में लेते हैं, पर जब 5 मिनट बाद मैं सीरियस हो जाता हूँ तो फिर उनको एकदम सीरियस हो जाते हैं कि यार ये बहुत इज़ लाइक सिंगिंग प्रॉपर. तो आप वो सिर्फ पगड़ी और वो हटा दो तो आवाज़ में से तो वो चीज़ निकल रही है. और वो बंदे को जब माता आई, भाई मैं तो डर गया. मैंने बोला यार अगली बार से मैं ध्यान से गाऊंगा. तो that's the story. Who's been your favorite co-star or like a co-singer, co-star, anybody, just favorite? Co-star को I think recently if I talk about Proof, he's a music director. Okay. He's a music composer who has done Tadka. And and Proof in himself, he's very busy and very popular music composer in Punjab. And he's been a very comfortable guy. Like I wasn't expecting that out of him. And so I would name Proof. Yeah, Proof. Uska naam Proof hai. So thank you so much. You're most And our being honest with Ankita round was so beautiful and enriching. So here's a small little thing from us. Oh wow. And here's a little thing for you. Oh, thank you so much. The reason why we've given you a small gift. Oh, thank you so much. वाह जी वाह, खुश है. इतनी अच्छी चीज़ है ना, मतलब आप. Thank you. So guys, I'm very sure कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा एंड काफ़ी सारा मोटिवेशन एंड काफ़ी सारा इंसाइट्स मिला होगा. So having said that, I really want you all to like, share, comment
and subscribe. And don't forget to hit the bell icon. Thank you so much. Lots of love. Sat Sri Akal, Namaste, hello everyone, I'm Gurdeep Mehndi, and do not forget to subscribe to this beautiful channel, The Podcasting Couch. और ऐसी खूबसूरत बातें और ऐसी मज़ेदार किस्से सुनने के लिए आपको बटन ऐसे नहीं दबाना, ठा करके दबाना है, फाड़ दो, जाओ दबाओ।